فیکٹری نثار مرائے اور عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ صبح پبلک کر دے گی۔ PTI نے عزیر بلوچ پر سندھ حکومت کی رپورٹ جعلی قرار دے دی۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں JIT کی رپورٹ سے پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت کے نام نکال دیے۔ PTI رہنما کا سپریم کورٹ سے جعلی رپورٹ پر کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ پارٹلین ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں صبح ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری، انور مجید اور دیگر ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالتی اہلکار تعینات کر دیے۔ پاکستان کا پورا انتخابی نظام بھارت کی گود میں پڑا ہے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا انکشاف پروگرام روبرو میں دعویٰ کیا کہ وفاقی کابینہ میں ایک سینئر ایڈوائزر کی بھارت میں IT کمپنی ہے۔ بھارتی کمپنی سے الیکشن کمیشن کا پورا سسٹم بنوایا گیا۔ 2 بھارتی ہیکرز نے الیکشن کمیشن کی سائبر سیکیورٹی بنائی ہے۔ رحمان ملک نے پاکستان میں ہونے والے تمام انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کل سے مونسون بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 3 سے 4 روز برسات جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ انتظامیہ کی نااہلی، ندی نالوں کی صفائی نہ کی جا سکی۔ تیز بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پاکستان میں کرونا کے وار جاری، ایک دن میں مزید 93 افراد چل بسے، اموات بڑھ کر 4712 ہو گئیں۔ 3191 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,28,474 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ناکافی انتظامات، مسیحا روٹ گئے۔ 48 ڈاکٹرز نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب حکومت نے انتظامات بہتر بنانے کے بجائے ڈاکٹرز کے استعفے منظور کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کرونا کو شکست دے دی، ٹیسٹ رپورٹ منفی آ گئی۔ شہباز شریف کی صحت یابی پر فیاض الحسن چوہان کی مبارکباد۔ کہا شہباز شریف اب ریموٹ کنٹرول قائد بننا چھوڑ دیں، فرنٹ فٹ پر آ کر کرونا کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ امید ہے شہباز شریف اب نیب میں بھی حاضر ہوں گے۔ وزیر ریلوے کے بلند و بانگ دعوے ہوا ہو گئے۔ محکمہ ریلوے مالی بدحالی کا شکار، شالیمار ایکسپریس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کو 15 جولائی سے بریک لگے گا۔ شالیمار کی جگہ ML2 کراچی سے 7 سیکشن پر موئنجودڑو ٹرین کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی، تحریک انصاف نے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ قائم کمیٹی برائے نظم و احتساب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عظمیٰ کاردار کو ذیلی کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ بھارت باز نہیں آیا، کنٹرول لائن پر پھر دہشت گردی کر دی۔ بھارتی فوج کی LOC کے بٹل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارت فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے 22 سالہ شہری زخمی، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ وائرس کی تباہ کاریاں جاری، امریکہ میں متاثرین کی تعداد 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، ہلاکتیں 1,32,000 سے زائد۔ برازیل، بھارت اور روس میں بھی صورتحال خراب، پرو میں مہلک وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، شرح اموات میں 5واں نمبر۔ دنیا بھر میں اب تک 5,35,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے، متاثرین کی تعداد 1,14,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اور نام ECL میں شامل کرنے کے علاوہ واقعے کے گواہان کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری ثانیہ میں 259 افراد جاں بحق جبکہ 50 مرد اور خواتین زخمی ہوئے تھے۔ سندھ حکومت آج ثانیہ، بلدیہ ٹاؤن، عزیر بلوچ اور نثار مرائے کی JIT پبلک کرے گی۔ جمعے کے روز ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا تھا کہ تینوں JIT رپورٹس پیر کو محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پر ڈال دی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات کے بعد کیا تھا۔ سندھ حکومت کے اعلان کے بعد ہی عزیر بلوچ کی JIT منظر عام پر آ گئی تھی۔
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज पार्क लेन रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और दीगर मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म के लिए अदालती एहलकार तैन कर दिए हैं। पार्क लेन रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और दीगर मुल्जिमान पर आज वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डीजी नैब सिंध नजफ मिर्जा ने 3 प्रोसिक्यूशन टीमें तश्कील दे दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बिलावल हाउस कराची में फर्द जुर्म आयद होगी। NICVD में अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब कोर्ट कराची में मुल्जिम फारूक अब्दुल्ला, शेर अली और सलीम फैसल पर फर्द जुर्म आयद होगी। इसी हवाले से मुंतजिम जज ने तीनों जगह वीडियो लिंक के लिए अदालती एहलकारों को तैनात कर दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने दावा किया है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सब फ्रॉड थे। जो लोग इंतखाबात में पैसा लगाते हैं उन्हें इस पैसे को पूरा भी करना होता है। रहमान मलिक ने इंकशाफ किया कि वफाकी काबीना में एक सीनियर एडवाइजर हैं जिनकी भारत में एक IT कंपनी है और उन्होंने भारतीय कंपनी से इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम बनवाया है। यहाँ तक कि 2 भारतीय हैकर्स ने इलेक्शन कमीशन की साइबर सिक्योरिटी बनाई है। पाकिस्तान का पूरा इंतखाबी निजाम भारत की गोद में पड़ा है। रहमान मलिक ने यह बात आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में कही। इतना पैसा खर्च होता है, कुर्सियां कौन देता है, फिर तकरीरें कौन कराता है। आप ही हंस रहे हैं और कौम भी देख के हंस रही होगी मलिक साहब जी क्या लें। और भाई ये जितने इलेक्शन होते हैं ना ये सब फ्लॉड होते हैं। इनके पीछे पैसा होता है, उन लोगों का पैसा होता है जिन्होंने लगाया होता है, फिर उन्हें पूरा भी करना होता है। अब मुझे पता है 2 मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछे कि क्लोटियम इंटरनेशनल किसने बनाई थी। नहीं वो कौन है? पूछा बताएं तो सही ना कौन है। मैं बता देता हूँ। बीना में एक एडवाइजर है जो इंडिया से अपनी कंपनी के डायरेक्टर लेके आया था, जिसने इलेक्शन कमीशन का बनाया था आपका ये पूरा सिस्टम। मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, किसी ने पूछा उससे। इलेक्शन कमीशन का सारा सिस्टम जो कि IT का तो उन्होंने किया और उस पर जो सिक्योरिटी की कंफर्मेशन थी वो 2 हैकर्स इंडिया का जिनका दफ्तर हैदराबाद दक्कन में है उन्होंने किया। आज हमारा अपना पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन सेल है, वो उनके मंजूर नज़र पड़ा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 5 जुलाई 1977 मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस रोज़ मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया। आम के मफादात के लिए माशरे की बुनियाद करप्शन पर रख दी गई। मार्शल लॉ उस तरह की कैफियत नहीं होगी, मतलब मॉडरेट बारिश होगी, ज़्यादातर मॉडरेट, लेकिन किसी किसी जगह में हैवी स्पेल हो सकता है। और जो लो लाइंग एरियाज हैं, आपके नशेबी इलाके हैं, वहाँ कुछ पानी वानी खड़ा हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर तो किया गया है हमारी एडवाइजरी में, लेकिन जो सिस्टम की अभी तक डायनेमिक्स है उसके हिसाब से कोई इतना बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। बारिशों का सीजन सर पर और कराची के नदी नालों की सूरत हाल वही पुरानी। अब तक किसी नाले की सफाई हो सकी और ना ही कचरा निकाला गया। गली महल्लों में मैन हॉल्स भी बंद पड़े हैं। पानी भर जाता है, बारिश से इतना पानी भरा होता है। गवर्नमेंट कोई आती है, फोटो खींच के ले जाते हैं लोग, मगर कोई एक्शन नहीं होता। जब बारिशों का टाइम आता है कचरा इतना भरा हुआ होता है कि दोबारा आप देख लो क्या कंडीशन है कि बारिश होगी तो सभी परेशान होंगे। हुकूमत बार बार ऐलान कर चुकी है कि नालों की सफाइयाँ करें, अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी हुई है। आगे लिए सफाई कराएं ताकि हम डूबने से बच जाएं। लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे छोटे हैं वो निकलना मुश्किल हो जाता है। एक हफ्ते तक कोई घर बंद रहते हैं। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कराची के जिला शर्की में नदी नालों की सफाई शुरू कर दी गई, जबकि बाकी जिला की सूरत हाल अवाम के सामने है। कराची में अब्दुल्ला कॉलेज खसाना लगता है, जबकि कोट लखपत में नामालूम अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी हो गए हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मोटरसाइकिल सवारों के कैरी डब्बे पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर दोनों कत्ल दरीना दुश्मनी का शाहसाना लगते हैं, ताहम दोनों अफराद की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। कातिलों ने दौरान वारदात SMG राइफल का इस्तेमाल किया। जाँ बहक होने वालों में से एक साबिक हेड कांस्टेबल काशिफ है, जबकि दूसरा दोस्त भी उसका हम नाम था। दूसरी जानब कोट लखपत के इलाके हमदानी पार्क में नामालूम अफराद की फायरिंग से नईम रफीक और इसकी बीवी आयशा जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के अरकान असम्बली का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज, अलामती धरना भी दिया। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा नहीं किया। शहरियों को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से निजात दिलाने का आज़म के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म कराने का मुतालबा भी कर दिया।
कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कई इलाकों में यौमिया 8 से 12 घंटे तक बिजली गायब। गर्मी और के इलेक्ट्रिक के अजाब से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कराची के अवाम का देरीना मसला हल कराने के लिए तहरीके इंसाफ मैदान में आ गई। अरकान असेंबली ने के इलेक्ट्रिक के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया, जहां रोजाना 2 घंटे अलामती धरना दिया जाएगा। कल से इनकी मुतज़बाना रवैये, कराची के साथ ज्यादतियां, कराची को अंधेरे में ढकेलने के खिलाफ 2 घंटे की अलामती धरना कराची के MNS, MPS, कराची PTI की तंजीम 3 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ धरना दिया करेंगे डेली बेसिस पे। फिरदौस शमीम नकवी ने लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया। जब नेपरा उन पे कोई पेनल्टी लगाती है या कोई ऑर्डर देती है, वो उसके खिलाफ जाके स्टे ले आते हैं। स्टे वो लेके आते हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और वो फिर डिले करते जाते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों की फंडामेंटल राइट के लिए डिमांड करेंगे कि वहां स्टे नहीं ले सकते। MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा नहीं किया। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक की उजारादारी खत्म करके दूसरी कंपनी को लाया जाए। कोरोना वायरस का खौफ या फिर मुलाजमत की बेयकीनी। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टरों ने नौकरी से इस्तीफा दिया। महकमा सेहत ने मंजूर भी कर लिया। यंग डॉक्टर्स कहते हैं महकमे और वजीर सेहत का रवैया इस्तीफे की वजह है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के 48 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में म्यो अस्पताल से 14, अलाइड अस्पताल से 2, DG खान से 4, सिविल अस्पताल भावलपुर से 2, शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान से 2 और जिनाह अस्पताल से 60 डॉक्टरों ने मुलाजमत छोड़ दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस्तीफा मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टरों के मुस्ताफी होने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं इस्तीफे की वजह MTI एक्ट और कोरोना से बचाव के हिफाजती सामान की कमी है। जब कोरोना आया तो वजीर सेहत की तरफ से और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से डॉक्टरों को वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। एक जो क्यास और गैर यकीनी सूरत हाल रही, उसके बाइस पंजाब भर के डॉक्टरों में एक ट्रेंड पाया जा रहा है कि वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसी ही बेयकीनी की सूरत हाल रही तो मजीद डॉक्टर्स भी मुस्ताफी हो जाएंगे, फिर हुकूमत खुद अस्पताल के इंतजाम चलाएगी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे का बढ़ता माली खसारा बेकाबू हो गया है। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। 15 जुलाई से शालीमार एक्सप्रेस नहीं चलेगी। अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म से जिंदा होने जा रही है। ये रेलवे का साल है, ट्रेन इनकलाब में दाखिल होने जा रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद के बुलंद बांग दावे हवा हो गए। बढ़ते माली खजारे के बाइस एक और ट्रेन